Good morning, dear students. This is the civics book of class ninth, and today we are going to discuss the next topic of the first chapter of this book, which is free and fair electoral competition. The name of this chapter is What is Democracy? Why Democracy? We have already discussed about the features of democracy. Now we will discuss that how free and fair electoral competition and elections take place. Now we'll again study about an example of a country. So in China, elections are regularly held after every 5 years. चाइना में कंट्री का पार्लियामेंट इलेक्ट करने के लिए हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं and that is called Kwangyo Renmin Daibiao Dahui in the Chinese language, and in English this is called National People's Congress. The National People Congress has the power to appoint the president of the country, and they have the power to appoint the president of the country. They can appoint the president of that country. It has nearly 3,000 members elected from all over China. लगभग 3,000 members पूरे चाइना में इलेक्ट होते हैं इस पार्टी से. Some members are elected by the army. कुछ members army elect करती है. Before contesting elections, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party. और election में contest करने से पहले एक व्यक्ति को, एक member को, एक candidate को they need the approval from the Chinese Communist Party. Only those who are members of the Chinese Communist Party or 8 smaller parties, वो जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर होते हैं या 8 छोटी छोटी पार्टियों की एलाइड मेंबरशिप जिनके पास होती है, they were allowed to contest election held in 2002-3 में इलेक्शन जो हुआ था उसमें उनको अलाउ किया गया था that they can contest in the elections. द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी. और गवर्नमेंट जो होती है वो हमेशा कौन फॉर्म करता है? कम्युनिस्ट पार्टी ही फॉर्म करती है. सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 में इसकी इंडिपेंडेंस के बाद मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट. मैक्सिको भी इलेक्शन करवाता है हर 6 साल के बाद अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट करने के लिए. द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल. और कंट्री कभी भी मिलिट्री या डिक्टेटर के रूल में के अंडर में नहीं रहा है. बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन was won by party called PRI, Institutional Revolutionary Party. लेकिन हर इलेक्शंस किसने जीते हैं? PRI पार्टी ने, जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी. अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शंस. अपोजिशन पार्टीज भी होती हैं, वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करती हैं बट नेवर मैनेज टू विन, बट कभी जीत नहीं पाए. द PRI वॉज नोन टू यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस, and it has been said that PRI party uses some many dirty tricks to win the elections, and all those who were employed in government offices, जो भी government offices में employed हैं, had to attend its party meeting. उनको party meeting attend करनी होती हैं. Teachers of government school used to force parents to vote for the PRI. और जो गवर्नमेंट स्कूल्स के गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो पेरेंट्स को फोर्स करते हैं दैट दे हैव टू वोट द पार्टी PRI. मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम. मीडिया जो होता है वो इग्नोर करता है अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक्टिविटीज़ को, जबकि उसे क्या करना चाहिए? दे हैव टू क्रिटिसाइज देम. समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स were shifted from one place to another in the last minute. कभी कभी लास्ट मिनट पे जो पोलिंग बूथ होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए जाते हैं, which made it difficult for people to cast their vote. जिसकी वजह से लोग अपना वोट कास्ट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है. इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू कास्ट देयर वोट्स. द PRI spent a large sum of money in the campaign for its candidates. और PRI
बहुत मतलब पार्टी के कैंपेन में, प्रचार प्रसार में अपने कैंडिडेट्स के लिए दे स्पेंड मच मोर मनी so that they can win the elections. Should we consider the elections described above as examples of people electing their rulers? क्या हम ऐसे इलेक्शंस को ये कंसिडर कर सकते हैं कि लोग अपने रूलर्स को इलेक्ट कर रहे हैं? जितनी भी कहानी हमने पढ़ी, रीडिंग दोज एग्जाम्पल्स वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट। इन एग्जाम्पल्स को पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं दैट वी कैन नॉट कंसिडर देम एज द इलेक्शंस which is giving the right to vote to the people. There are many problems here. बहुत सी problems हैं. In China, the elections do not offer the people any serious choice. चाइना में लोगों को कोई serious choice नहीं मिलती है. They have to choose the ruling party and the candidates approved by it. उनको रूलिंग पार्टी को ही चूज़ करना है और जो कैंडिडेट्स का अप्रूवल हुआ इस पार्टी से, they have to choose them also. Can we call this a choice? क्या हम इसको चॉइस कह सकते हैं? इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल, मैक्सिको की एग्जाम्पल में पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस। ऐसा लगता है कि लोगों के पास चॉइस है, बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। लेकिन प्रैक्टिकल वे में एक्चुअली दे आर नॉट हैविंग एनी चॉइस। देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड। कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे रूलिंग पार्टी को डिफीट किया जा सके, इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट। जबकि लोग इसके अगेंस्ट भी चले जाएं तो दे कांट डिफीट द रूलिंग पार्टी। दीज आर नॉट फेयर इलेक्शंस, एंड इसको यार नहीं कह सकते हम, फेयर इलेक्शंस नहीं कह सकते। वी कैन दस एड अ सेकेंड फीचर टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए अब हम अपने फीचर ऑफ डेमोक्रेसी में दूसरा फीचर भी ऐड कर सकते हैं। होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट सफिशिएंट। इलेक्शन हेल्ड करवाना ही सफिशिएंट नहीं होता है। ये मतलब किसी भी प्रकार का इलेक्शन हेल्ड करवाना ही फीचर ऑफ डेमोक्रेसी में नहीं आ सकता। द इलेक्शन मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स। इलेक्शन में हमको एक रियल चॉइस ऑफर होनी चाहिए, पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स होने चाहिए, दैट इफ़ समवन इज़ नॉट गुड देन वी शुड हैव अनदर चॉइस टू गेट समवन गुड एज वी वांट. And it should be possible for people to use this choice to remove the existing rulers if they wish so. और ये पॉसिबल होना चाहिए ताकि लोग एग्जिस्टिंग रूलर को अगर पसंद नहीं करते हैं तो उनके पास चॉइस होनी चाहिए, सो दे कैन रिमूव देम, एंड इफ दे विश टू डू सो दे कैन डू सो. अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. इसलिए एक जो डेमोक्रेसी है वो किस पे बेस्ड होती है? फ्री और फेयर इलेक्शन पे बेस्ड होती है. वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग. जहाँ जो पावर में हो उनका एक फेयर चांस हो कि वो हार भी सकते हैं, ऐसा ना हो कंफर्म दैट दे विल डेफिनेटली विन. We shall find out more about a democratic election in chapter 3, and in the chapter 3 of this book we'll find out more things about the democratic elections and free and fair election. So that's enough for today. See you all in the next class for the next topic of this chapter, which is one person, one vote, and one value. It means that we are going to discuss about the universal adult franchise as the next topic. So till then, goodbye, take care, stay home, stay safe, and don't forget to subscribe my YouTube channel.